થયો કે એના ઉપરના જે અંશો છે વચ્ચેના મધ્યમાં એક જ અંશ છે અને પરિવેશમાં 2, 8, 18 અને 32 આટલા જ અંશો છે. હવે એની પાસે વધારાનો એક પણ અંશ નથી કે એને બહાર આપી શકે અને એવી જે જગ્યા છે એમાં એક પણ અંદર વધારાનો લઈ શકે. આ એક નિયમ છે, બધા વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓને ખબર છે, 2n². 2n² એટલે 2n એટલે પરિવેશ, પહેલો પરિવેશ એટલે 2 ગુણ્યા 1 અને સ્ક્વેર એટલે એનો સ્ક્વેર. એટલે વિચાર કરો કે એટલે પહેલામાં 2 હોય એટલે 0 મૂકો, n બરાબર 0 મૂકો તો અહીંયા 2 આવે, પછી 8 આવે, 18 આવે. એટલે એ ફોર્મ્યુલાની વાત નથી કરતો હું અત્યારે, પણ ટૂંકમાં એ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આ 32 છે એટલે 32માં એ પૂર્ણ થઈ ગયું. એમાં પછી 33માં આવે નહીં, 33માં આવે તો પછી આગળનો બીજો પરિવેશ આવે. એટલે આને ગઠન પૂર્ણ પરમાણુ કીધો. અને આ ગઠન પૂર્ણ પરમાણુ એ એવો થઈ ગયો કે હવે કોઈને કોઈ દિવસ ભવિષ્યમાં અંશો આપશે નહીં, ભવિષ્યમાં અંશો લેશે નહીં અને આ પરમેનન્ટ થઈ ગયો. આ કદી મૃત્યુ પામશે નહીં. આ અમર થઈ ગયો. એ જ જીવન પરમાણુ. એટલે ભૌતિક મતલબ આજે જડ એકમમાંથી વિકાસપૂર્વક ચૈતન્યમાં ટ્રાન્સફર થયો. આ અનુસંધાન આવું કે છે, બાબાજી આવું કે છે કે આ જીવ ક્યાંથી આવ્યો, આત્મા ક્યાંથી આવ્યો, એ એમના પોતાના દર્શનમાં આ વાત એમને આવી. અને એના પછી એટલે બાબાજી તો પોતે અનુસંધાન કર્યું ત્યારે એમને એવું કીધું કે ભાઈ મેં સાધના કર્યા પછી મતલબ એટલે સમાધિ સુધી પહોંચ્યો. સમાધિ સુધી પહોંચ્યા પછી મારી આશા વિચાર ઈચ્છા ચૂપ થઈ ગઈ. પણ મારા પ્રશ્નોના જવાબ મળ્યા નહીં. પ્રશ્નોના જવાબ ના મળ્યા એટલે એમને આગળની પ્રક્રિયા કરી અને આગળની એમને સંયમની પ્રક્રિયા કરી. તો સંયમની પ્રક્રિયા જે પતંજલિ યોગ સૂત્રમાં જે લખેલી છે એનાથી કંઈક વિરુદ્ધ કરીને એમને કંઈક કર્યું. અને એ સંયમની પ્રક્રિયામાં એમને આકાશ તત્વ ઉપર ધ્યાન કરી અને આખી વસ્તુ શું છે કે એકચ્યુઅલી જોઈ તો એવું કહે છે કે તમે જેમ ટીવી જુઓ એમ આખી વસ્તુ મારી સામે ખુલતી ગઈ એમ હું એનું અધ્યયન કરતો ગયો. તો બાબાજી કહે છે 5 વર્ષ સુધી એટલે 5 વર્ષમાં 3 વર્ષ સુધી સતત દિવસમાં 12 ને 18 કલાક સતત એમને આ વસ્તુ શું છે કે એકચ્યુઅલી એક વસ્તુ ઉપર જેના ઉપર ધ્યાન કરે બધી જ વસ્તુ એમના આગળ ખુલતી જાય. જેટલી વસ્તુ કરે એમની આગળ ખુલતી જાય. અને એ કહે છે કે કોઈ પણ અંશની વાત આવે તો એના પરમાણુના અંદર અંશો કેટલા છે હું ગણી શકું છું, ગણી શકતો હતો એક વસ્તુ. એટલે જે વ્યક્તિ સ્કૂલમાં ગયા નથી, મતલબ જે નોર્મલ સાયન્સ ભણ્યા નથી, કશું નથી, અને એ વિજ્ઞાન જે અત્યારે શું છે કે જોવા જઈએ તો જે વસ્તુ કહે છે એ બધી વસ્તુઓ એમને ટૂંકમાં શું છે કે એકચ્યુઅલી એમને એ દેખાય કે આ આવી રીતની વસ્તુ છે. એટલે હવે આપણે આ વાત છે ને, આ વાત આપણે સાંભળી છે, હવે આ વાતના આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. હકીકતમાં જો આવું છે, હવે એ આખી મિકેનિઝમ આપી અને એ જે આખી વસ્તુ એમને સમજાવી કે ભાઈ આ જીવન આવી રીતે છે, શરીર આવી રીતે છે, પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ જે છે, ધરતીની ઉત્પત્તિ આવી રીતે થઈ, એમાંથી એક વસ્તુ આવી રીતે થઈ, આ ખાલી સ્થાન છે, ઉર્જા સ્વરૂપ છે, આ આખી બધી વસ્તુ એમને જે દેખાઈ એના ઉપરથી હાલની તારીખમાં આપણને તો એ કહે છે એટલે આપણે હાલ માનીએ છીએ એવી વસ્તુ છે, બરાબર. પણ માનતો આપણને એટલી તો ખબર પડે છે કે આ બધી વસ્તુ કહે છે યાર ફિટ તો થાય છે. ખાલી ચકાસવાનો મુદ્દો એ છે કે આ બધી જ વસ્તુ એમને જેટલી વસ્તુઓ જે કહે છે એ પ્રમાણે આપણા મગજમાં વિચારીએ તો અત્યાર સુધી ભલે એના નામની ખબર ના હોય પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણને ફિટ થાય એવું લાગે છે. આવું લાગે છે તમને? સોમભાઈ જે વાત કરે છે એ વાતમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણને એવું લાગે છે કે આ વાત ખરેખર આપણા હાથે આ સેટ થાય છે અને આ કામની, અને એટલે જ આપણે બેઠા છીએ, બરાબર છે આ વાત. એટલે એમને ટૂંકમાં શું છે કે આ આખી વાતને ગઠનપૂર્ણ પરમાણુ થયો અને એમાં વચ્ચે આત્મા, એના પછી બુદ્ધિના 2 અંશ અને 8 ચિત્તના, વૃત્તિ 18 અને 32 આવી રીતે ટૂંકમાં આ છે. અને આ આખા પરમાણુનું ઉપરથી આપણું જીવન આપણે કેવી રીતે ચલાવીએ છીએ, આપણા ભાવ અને વિચારની સ્થિતિ કેવી રીતે છે એના ઉપર મનોસંચેતનવાદી મનોવિજ્ઞાન કરીને આખું પુસ્તક બાબાએ આપ્યું છે.
આ આખા ફક્ત ને ફક્ત આ ગઠનપૂર્ણ પરમાણુ જીવન ઉપર મનોસંચેતનાવાદી મનોવિજ્ઞાન કરીને આખું પુસ્તક એમને લખ્યું છે કે આખી વસ્તુ શું છે, આ અંશો શું છે, એના આ મનના 32 છે એટલે મનના 32માં કઈ વસ્તુઓ છે, શું છે, આખી વસ્તુ ડિટેલમાં છે. એટલે એ આપણે કહીએ. હવે વસ્તુ શું થઈ કે આપણે અત્યાર સુધીમાં જે આપણી બધાની ચાહત શું છે, બરાબર છે, બધાની ચાહત છે ને એ હકીકતમાં જોવા જઈએ તો એક જ છે. ચાહત એક છે એટલે શું? આપણને બધાને એક જ વસ્તુ ગમે છે. કઈ ગમે છે? બધાને સુખી થવું છે. સુખી થવાની વાતમાં કોઈ વ્યક્તિ નકારી શકે નહીં કે મારે સુખી નથી થવું, એવી વાત નથી, બરાબર. પણ અલગ અલગ કેમ થાય છે? તો અલગ અલગ એટલા માટે થાય છે કે આપણે આપણી જાતને, હું અને મારું શરીર, આ બેને જુદું જોઈ શકતા નથી. માણસ એટલે શરીર અને જીવન બંને ભેગું થઈને માણસ કહીએ, બરાબર છે. હું અને શરીર બંને ભેગું થયું એટલે હું એટલે આ જીવન. અહીંયા જીવન વિદ્યામાં એને જીવન કીધું, જૂના બધી શાસ્ત્રોમાં આપણે આત્મા કહેતા હતા, પણ ટૂંકમાં શું છે કે એ બેનને ભેગું થઈને માણસ થાય. હવે શું છે કે ભ્રમિત માણસ આપણે બધા અત્યાર સુધીમાં શું છે કે જે છીએ અમે, જીવન ગણો કે શરીર ગણો, બધું જે છીએ અમે છીએ, આ દેખાય છે એ જ છે બધું. એના લીધે આપણે જીવન અને શરીરને જુદું પાડી શકતા નથી, અને જીવન અને શરીરને આપણે બિલકુલ જુદું નથી પાડી શકતા. એટલા માટે શરીર સાથે જોડાયેલી વસ્તુઓ સાથે જ આપણી બધી ભાષા છે અને એના સાથે જ આપણા કનેક્શન છે. આપણને આપણા સગા સંબંધી, આપણા બીજા આ બધા જ છે ને એ આપણને કેવી રીતે દેખાય છે? એનું કારણ શું છે કે આપણા શરીરને જોડાયેલું હોય એ બધા, એટલે શરીરને જોડાય એટલે આપણા બ્લડ રિલેશનમાં હોય, આ હોય તે હોય એ જ, અને એના લીધે મારું તમારી વસ્તુ આવી ગઈ ત્યાં. મારો કહેવાનો ભાવ પકડાય છે થોડું? આપણે આ બેનું જુદું ના પાડી શક્યા એટલે આ વાત આવી થઈ. એટલે બધી જ શરીરને જોડાતી વાતો ઉપર આવે. બીજી વાત છે કે શરીર આવ્યું એટલે શરીરને, મને તીખું ભાવે છે તો કોઈને ઘડું ભાવે છે, તો કોઈને બીજો ટેસ્ટ ભાવે છે. એટલે એ રીતે જોવા જઈએ તો એ પણ પ્રમાણે બધાને ટૂંકમાં શું છે કે અલગ અલગ ભાવે. એટલે જે કંઈ આ ઇન્દ્રિયોની રીતે જોઈએ તો કોઈ પણ રીતે આ માણસની કોઈ વાત એક સરખી બેસતી જ નથી. બેસતી નથી એનું કારણ શું છે કે આપણે બધાને ટૂંકમાં શું છે કે આ વસ્તુ એમ જ લાગે છે કે હું છું એ શરીર છું. હવે તકલીફ ક્યાં થાય છે? આપણે બધાને ઘરમાં હોઈએ, બીજે હોઈએ, હું જેમ કહું એમ કેમ ના કરે, આવું કેમ ના કરે, આવું કેમ ના કરે, આવી જે બધી વસ્તુ છે. મને લાડુ ભાવે છે તો આને કેમ ના ભાવે, આ લાડુ કર્યા છે તો કેમ નહીં ખાતો, આ બધા જે નાના મોટા પ્રશ્નો છે. આ કલરનો કપડો બહુ સરસ લાગે છે મને, તમે કેમ નથી પહેરતા, તારે આવું જ લાવવાનું છે, હું કહું એ કપડો પહેર. બાળકોને પણ આપણે આવું કહેતા હોઈએ. આ બધી જે વાતો છે ને એ વાતો હકીકતમાં શરીરને અનુસંધાનમાં જ છે. કોઈને આ કલર ગમે, કોઈને આ ટેસ્ટ ગમે, કોઈને આ ગમે. આ બધું જ શરીરને લીધું છે એટલે બધું જુદું જુદું લાગે. જે દિવસથી આપણને એવી ખબર પડવા લાગે હકીકતમાં કે આપણે આ શરીર જુદું છે અને જીવન જુદું છે, શરીર ને જીવન બે જો જુદું હોય તો જીવનની જરૂરિયાત જુદી છે અને શરીરની જરૂરિયાત જુદી છે. અને શરીરની જરૂરિયાત બધાને અલગ અલગ રહેવાની છે. એવી વાત આપણે બધા એક વખત સ્વીકારી લઈએ તો આપણને કોઈના તરફની કમ્પ્લેન બંધ થઈ જાય. આપણને એમ લાગે કે એક વાત છે ભાઈ એને ગળ્યું ભાવે છે, મને તીખું ભાવે છે, તો એમાં ખોટું શું છે? ભાવે એવું બની શકે. એ જ્યારે આખી મિકેનિઝમ આપણે સમજી લઈએ તો આપણને એ પછી એ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ જ ના આવે, વાંધો જ ના આવે. એટલે આ આખી વાત આને જીવન જ્ઞાન પણ કહેવાય. આગળ જતો જેટલું આટલી વસ્તુ સમજશું તો હકીકતમાં એ વસ્તુ છે. તો આ જેટલું આપણે સમજતા જઈએ તો એ થાય. તો હકીકતમાં જોવા જઈએ તો આ જે આપણી પાસે અક્ષય શક્તિ અને અક્ષય બળ છે, બરાબર છે. હવે આપણે આ બધી વસ્તુઓ શું છે કે જે આપણામાં તાકાત છે, વિચારવાની તાકાત છે, એ આપણને આ ગઈકાલે જે આગળના સેશનમાં જોયું કે ખાલી સ્થાન ખાલી નથી. ખાલી સ્થાન ઉર્જા સ્વરૂપ છે. ઉર્જા સ્વરૂપ છે એટલે એની અંદર એનર્જી ભરેલી છે, એની અંદર શક્તિ ભરેલી છે. આ જે વસ્તુ છે એના લીધે શું છે કે કોઈ પણ એમાં અંદર જાય છે
તો એમાં અંદરથી એનર્જી એને મળે છે. એનર્જી પોતાની પાત્રતા આપણને લે છે. એટલે પાત્રતા, યોગ્યતા અને ક્ષમતા પ્રમાણે એમાંથી શું છે કે વસ્તુ અંદરથી લે છે. બરાબર છે. હવે હા, જેમ પેલી જુદી જુદી વાત છે એમ આ 5 વાતો એવી છે કે આ 5 વાતો છે એ હકીકતમાં જોવા જઈએ તો બધા જ માણસો માટે સેમ છે. આમાં કોઈ વ્યક્તિ માટે અલગ અલગ નથી. તો આ આપણે સુખી થવાની ઈચ્છા તમે ધરતી ઉપરના કોઈ પણ માણસ માટે જો કે બીજી ધરતી ઉપરના કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે જો, તો સુખની ઈચ્છા છે એ બધા માટે એક જ હશે. વિચારવાની તાકાત કોઈને પણ કહો તો વિચારવાની તાકાત બધાના પાસે અનલિમિટેડ છે. બરાબર છે. એટલે જીવન એ નિરંતર છે. જીવન નિરંતર છે એ કેવી રીતે જાણી શકાય? આજે તમને કહું કે કોઈને પણ આપણે છે ને હું મરી ગયો, હા, એવી વસ્તુ આપણે કોઈને પણ શું છે કે એકચ્યુઅલી એ સ્વીકાર્ય નથી. પહેલી વાત તમે વિચાર કરો, હું મરી જવું એવી વાત સ્વીકાર્ય નથી. આ જે ભાવ છે ને બધાનો, એનો મતલબ એ છે કે હું મરતું જ નથી. પણ આપણે પેલા હું સાથે મારા શરીરને એવી રીતે બંને ચોંટેલું છે કે એના લીધે હું એવું સમજુ છું કે મારું શરીર મરી ગયું ત્યારે હું એ મરી ગયો એવું ખરેખર જોવા જઈએ તો હું આવું સમજી બેઠો છું. બાકી હકીકતમાં જોવા જઈએ તો હું મરી જવું એવી વાત જે આપણને કોઈનું સ્વીકાર્ય નથી. એ વાત એ નેચરલી છે અને એટલા માટે સ્વીકાર્ય નથી કે હકીકતમાં એ અમર છે. આ અણુ છે કારણ કે ધરતી ઉપર કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ એક અણુ પરમાણુનો નાશ થતો નથી. બરાબર છે. એટલે નાશ ના થાય તો એનો મતલબ શું છે કે બીજા બધા જે ગઠનશીલ પરમાણુઓ છે એ એકમાંથી બીજામાં રૂપ પરિવર્તન થાય છે. આજે લોખંડ આવે એને કાટ લાગે તો બીજું કઈ બને. બરાબર છે. ઓક્સિજન ને હાઇડ્રોજન ભેગો થાય તો પાણી બને, એ બીજી વસ્તુ હોય. એમાંથી કંઈક ત્રીજું બને, પાણી સાથે બીજું કંઈક બને ત્રીજું બને. એવું બધું બનતું જઈને કરતા અત્યાર સુધીમાં માણસનું શરીર સુધી બન્યું. એ બધી વસ્તુમાં રૂપ પરિવર્તન થયું. પણ હકીકતમાં જોવા જઈએ તો એ વસ્તુ કોઈ પેલી રહી. ઘણી વખત આપણને એવું લાગે કે આ ધરતીમાંથી વનસ્પતિ ઉગે છે. બરાબર છે. વનસ્પતિ ઉગે છે તો આમ જોવા જઈએ તો વનસ્પતિ ધરતીમાંથી કંઈકનું કંઈક લે છે. હવે કંઈકનું કંઈક લે છે અને એ જોવા જઈએ તો આટલી ઊંચી થઈને આટલું મોટું ઝાડ થઈ ગયું. હવે આ ઝાડ થઈ ગયું પણ ફરીથી પાછું સુકાઈને પાછું કોવાઈને ધરતીમાં જતું રહે. હવે એ જ વસ્તુ તમે વિચાર કરો કે કોવાઈને ધરતીમાં થાય છે પણ એક આખું લીમડાનું ઝાડ છે. આ લીમડાના ઝાડને તમે ટોટલ આખા ઝાડને જો બાળી નાખો ટોટલ, તો એમાં પાણીની જગ્યાએ ઉડી જશે. હવાવાળો ભાગ હવાની જેમ લીધું છે હવામાં જતું રહેશે અને છેલ્લે જેટલું બચશે મારા હિસાબે 2 થી 3% પાર્ટ જે બચતો હોય એટલો પાર્ટ જ એને ધરતીમાં લીધો તો ને ધરતી પાસે જતો રહે. તમે કોઈ પણ લાકડાને કે કોઈને પણ આવી રીતે બાળો તો તમને લાગે કે આટલું મોટું હતું પછી છેલ્લે એટલે એને ધરતીમાંથી જેટલું લીધું તે ધરતીમાં જતું રહ્યું, હવામાંથી લીધું તે હવામાં જતું રહ્યું. બરાબર છે. આખી વસ્તુ શું છે કે ટોટલ, એટલે જે ટોટલ આવી રીતે જે જીવન છે એ પણ અંદરથી મરવા માંગતું નથી. એટલે નિરંતર છે અને એ દરેક વ્યક્તિમાં એવું શું છે કે એવું છે કે એને છેલ્લે એને પોતાને મરવાનું ગમતું નથી. એટલે એ નિરંતર છે. નિયમ કોઈ આપણે બનાવ્યા છે? નિયમ ઓલરેડી છે. નિયમ છે પણ આપણને નિયમની હકીકતમાં નિયમની આપણને ખબર નથી. આપણે અત્યાર સુધીમાં એ એરિયામાં પ્રવેશ્યા અને નિયમની ખબર હોત તો અત્યાર સુધીમાં તમને કહું કે આ ધરતીને બીમાર કરવાનું કામ કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ થયું છે એ વાત બનત નહીં. પણ એને નિયમ પ્રમાણે કામ ના કર્યું એટલે આ વસ્તુ છે. એટલે ધરતીના જે નિયમો છે, જે આ નિયમ છે એ નિયમને બાકીની 3 અવસ્થાઓ ફોલો કરે છે. પદાર્થ, પ્રાણ અને જીવ અવસ્થા, આ ત્રણેય છે ને ત્રણેય પોતાના નિયમને ફોલો કરે છે. તો એમાં કોઈ જગ્યાએ પેલી વસ્તુ નથી. માણસને જ આ નિયમને ફોલો નથી કરતો એટલે એમાં તકલીફ છે. અને બીજું મૂળ ઉર્જા. બરાબર છે. મૂળ ઉર્જા જેને ગઈકાલે આપણે ખાલિસ્તાન કીધું. આ જે આખી વાત છે એ આખી વાત
એ જો આટલી વસ્તુઓ છે, આ 5 વસ્તુઓ બિલકુલ નિરંતર છે, કોઈ પણ માણસમાં તમે જો તો આમાં કશું બદલાતું નથી. હવે જો ખરેખર મારો ભાવ અને વિચાર જો બદલાતો હોય, તો ભાવ અને વિચાર મારો બદલાતો હોય તો મારી વસ્તુ છે ને એ હકીકતમાં જોવા જઈએ તો શરીર સાથે જોડાયેલી છે એટલે બદલાતી જાય છે. એ જ વસ્તુ જો મારી આ 5 સ્થાયી વસ્તુઓ સાથે જોડાય તો એ બદલાવાનો સવાલ ના આવે. બરાબર. હવે બરાબર છે. આમાં તો જીવન બીજી એની આપણને હવે આનાથી વાત એ થઈ કે આટલું સરસ તંત્ર ચલાવવાવાળી આ કોઈ વ્યવસ્થા છે, અને આખું તંત્ર આટલું સરસ ચલાવે છે, તો એ ચલાવવાવાળી વ્યવસ્થા છે, તો આ વ્યવસ્થા આટલું મોટું તંત્ર ચલાવે છે, તો એ તંત્રની વ્યવસ્થા સમજું, એના નિયમો હું સમજું, તો એના નિયમો હું મારા માટે, મારા પરિવાર માટે ઉપયોગ કરું, તો ખરેખર એ વ્યવસ્થિત ચાલે છે. તો આમાંથી હું એ વ્યવસ્થિત ચલાવવા માટેનું કંઈક શીખું, એ વાત છે. તો હવે એમાંથી વાત આવી તો પછી સુખની વાત આવી. તો સુખ એટલે પહેલી વસ્તુ આવી સ્વીકૃતિ બરાબર સુખ અને અસ્વીકૃતિ બરાબર દુઃખ. એટલે કોઈનો સ્વીકાર ભાવ છે એટલું સુખ, અને જેટલો અસ્વીકાર ભાવ હોય એટલું દુઃખ. બરાબર છે. હવે આ વાતની એમને જે ચર્ચા કરી, એટલે એમાં આવી ટાઈપની વસ્તુની ચર્ચામાં કોઈને કદાચ એવું લાગતું હોય કે આ ચર્ચામાં થોડું મતલબ કોઈની કાલ પ્રશ્ન હોય તો પણ એ પ્રશ્ન આપણે ચર્ચા કરી શકીએ કે સ્વીકારવામાં અને અસ્વીકારવામાં આ દુઃખ ને સુખ. ભાઈએ કાલે મોટા ભાગની વસ્તુ તો શું છે કે ક્લેરિટી કરી જતી, છતાં પણ શું છે કે જેટલી વસ્તુ આપણે સ્વીકારીએ છીએ, હવે હું તમને એવું કહું કે આપણે આપણા બાળક માટેની સ્વીકૃતિ આપણી એના માટેની એકદમ ગાઢ સ્વીકૃતિ છે. બાળકના હાથે કોઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તો એ ભૂલ અથવા એને કોઈ પણ વસ્તુ તોડી નાખી હોય તો આપણે આપણી જાતને જ બધા પૂછીએ કે આપણા ઘરમાં કાચનો ગ્લાસ છે, એ આપણા બાળકના હાથે તૂટી ગયો, અને એ જ ગ્લાસ એ આપણા ત્યાં કોઈ મહેમાન આવ્યું છે અજાણ્યું, અને એમનો બાળકે લઈ અને એ ગ્લાસ તોડી નાખ્યો. આ બંનેમાં ભાવમાં ફરક આવે છે કે નથી આવતો? આવે છે. આ કેટલા લોકો સંમત છે આમાં? બરાબર. વાત આ છે. એટલે પેલામાં મારા તરીકેની સ્વીકૃતિ છે, આ સ્વીકૃતિ છે એટલે ત્યાં ભાવ જોડાયેલો છે. પેલા માટે હજુ સ્વીકૃતિ નથી એટલે ત્યાં દુઃખ આવે છે. વાત બેઠે છે મજામાં? એટલે સ્વીકૃતિ બરાબર. હવે શું છે કે કાલે કોઈ અમને ગોષ્ઠીમાં પણ પૂછતું હતું અને બીજા બધા ચર્ચામાં થતું હતું, તો આવી રીતે સ્વીકૃતિ આવે તો સ્વીકૃતિ શું છે કે એકચ્યુઅલી ગમે તે વસ્તુની સ્વીકૃતિ કરવાની થાય. સ્વીકૃતિ મતલબ શું છે કે આજે ગમે તે વસ્તુ સ્વીકારી જ લેવાની, દુઃખી ના થવા માટે. તો એ વાત નથી. હકીકતમાં જોવા જઈએ તો સ્વીકૃતિ હંમેશા વ્યવસ્થાની સ્વીકૃતિ થાય. અવ્યવસ્થા હોય તો એની સ્વીકૃતિ ન થઈ શકે. અવ્યવસ્થા હોય તો એમાં હંમેશા શું છે કે એકચ્યુઅલી પરિસ્થિતિ વશ આપણે એને એ કરવું પડે, તો એમાં દુઃખ જ થાય અને દુઃખી આપણે થઈએ જ છીએ. એટલે હકીકતમાં જોવા જઈએ તો સ્વીકૃતિ જે છે એટલે એના માટે શું થાય કે હકીકતમાં વ્યવસ્થાની જ સ્વીકૃતિ થાય. આપણે વ્યવસ્થાની સ્વીકૃતિ કરવા માટે ટેવાયેલા છીએ. બરાબર છે. અને વ્યવસ્થાની સ્વીકૃતિ હોય તો પછી શું છે કે માનવમાં શું વ્યવસ્થા છે, પરિવારમાં શું વ્યવસ્થા છે, સમાજમાં શું વ્યવસ્થા છે, અને પ્રકૃતિમાં શું વ્યવસ્થા છે, એ વાત શું છે કે એકચ્યુઅલી જો આપણને ભાઈએ આગળ વાત કરી તો આના પછી બીજી બે જ છે ને લગભગ. બરાબર એ જ છે. એટલે ગઈકાલ સુધી એમને આટલી વાત કરી, બાકી પછી આજે આ વાત આવી ગઈ. તો સ્વીકૃતિ એ વ્યવસ્થાની સ્વીકૃતિ છે. બરાબર છે. અને વ્યવસ્થાની સ્વીકૃતિ એટલે વ્યવસ્થાને સમજવું, જીવવું અને સમજાવવું, આ જ માણસનું કામ છે. બરાબર. હવે પેલું કાઢી નાખશો ચાલશે, વાંધો નથી. હવે માનવમાં વ્યવસ્થાની વાત આવી, અને માનવમાં વ્યવસ્થાની વાત આવી તો પહેલી જ વસ્તુ આવી કે આપણી આવશ્યકતાઓની વાત આવી ગઈ. તો આવશ્યકતાઓની વાત આવી ગઈ એટલે એમાં આપણને આજે ભણવામાં આવે છે
કે આપણી બધી જરૂરિયાતો તો ઘણી બધી છે અને વસ્તુઓ એટલી બધી ઉપલબ્ધ નથી. આ બે વાત આવે એટલે હંમેશા શું છે કે તમને થાય. અને આનું સાદામાં સાદું ઉદાહરણ તમને આપું તો જે દિવસે મ્યુનિસિપાલિટીમાંથી એવું કહેવામાં આવે કે આજે તમારા ઘરમાં પાણી નહીં આવવાનું, તો એ દિવસે આપણે નાની મોટી તપેલીઓ સુધી ભરી કાઢીએ છીએ. બહેનોને વધારે ખબર હશે આની. આવું થાય છે. એટલે હંમેશા શું છે કે જે વસ્તુ એવી લાગે કે મારે જોઈએ એટલી નથી મળવાની, તો તમને કહું એનો સંગ્રહ આવે જ, એમાં કોઈ ડાઉટની વાત નથી. એટલે તમને કહું કે આપણે પછી ભલે પછી પાણી આવે એટલે બધી તપેલીઓ બાથરૂમમાં ઢોળી દઈએ, પણ નાનો મોટો બધો તપેલો ભરી દઈએ. બરાબર. હવે એ જે વસ્તુ છે એટલે જ્યારે એવું લાગે કે મારી જરૂરિયાત વધારે છે અને મારી જરૂરિયાત પ્રમાણે વસ્તુ મળશે નહીં, એટલે હંમેશા સંગ્રહની વાત આવે. અને અસુરક્ષા લાગે, મને મળશે કે નહીં મળે, મળશે કે નહીં મળે, મારે જોશે એટલું પાણી હશે ને, એટલા માટે શું છે અસુરક્ષા લાગે. અસુરક્ષા લાગે એટલે આપણે શું છે કે એકચ્યુઅલી ભય લાગે, ને ભય લાગે એટલે આપણે સંગ્રહ કરીએ. સંગ્રહ કરીએ એટલે શું થાય, હવે આપણે સંગ્રહ કરીએ એટલે કોકનું ઓછું જાય, એટલે કોકનું શોષણ થઈ ગયું. અને એ શોષણ થાય એટલે કોક પછી જેને તે પાણી ના આવે એ પછી માટલો લઈ લડવા આવે કે ના આવે? હા, આવે લડવા. એમાં બીજી વાત નહીં, વિરોધ થાય, સંઘર્ષ નું યુદ્ધ થાય. ઘણી જગ્યાએ ગામડામાં જૂના પહેલા તો કોઈ વખત પાણી ના, હવે અત્યારે દરેક જગ્યાએ ઘરનો નળ આવી ગયા. બાકી ગામના કુવા પાણી ભરવા જતા હતા ને અમે પણ ખેતરમાંથી માથે ઉપાડીને પાણી ઘરે લાવ્યા છીએ. ત્યારે તમને કહું કે જો કોઈ ખેંચીને ભરી આપતું હોય અને એમાં પણ સમજી લો કોઈ આગળ પાછળ કરે તો ત્યાં માથાકૂટ ઊભી થાય અને આવી બધી વસ્તુ થતી હોય, તો એનો મતલબ ત્યાં હંમેશા સંઘર્ષ અને ઝઘડાનું યુદ્ધ થાય. આવી વસ્તુ થાય અને આવી વસ્તુ થાય એટલે વધારે અવ્યવસ્થા થાય. આ અવ્યવસ્થા થાય એટલે વળી પાછી વધારે અસુરક્ષા આપણને થાય. કસાલું આવું તો વારંવાર થતું જશે. એટલે ફરીથી પાછી એ ચક્કરમાં, અને આ ચક્કરમાં આપણે ફર્યા જ કરીએ છીએ. અને હકીકતમાં એના લીધે શું છે કે આ જે બધું ચાલે છે એ આ વાત છે. એટલે બેઝિક વાત જ અહીંયા આપણને ખોટી ભણાવવામાં આવે છે કે હકીકતમાં આવશ્યકતાઓ ઘણી બધી છે અને વસ્તુઓ ઓછી છે એવું ભણાવવામાં આવે છે. આ વાત જ ઊંધી ભણાવવામાં આવે છે. અરે ભાઈ, આ વનસ્પતિનો જોઈએ એના કરતા ધરતી અનેક ગણી છે, આ પ્રાણીઓને જોઈએ એના કરતા અનેક ગણી વનસ્પતિ છે, અને માણસને પણ જેટલું જોઈએ એના કરતા પેલું છે. પણ આપણે ખરેખર જોવા જઈએ તો આપણી જાતનું શરીર સમજીને બેઠા છીએ અને આપણને એટલી ખબર એવી રીતની ભાન જ નથી. આપણે એવું સમજીએ કે આ ઇન્દ્રિયોથી સુખી થઈશું અને ઇન્દ્રિયોથી સુખી થઈશું એવું સમજીએ છીએ. એટલે આપણે સંગ્રહ માટે મળ્યા છે. એટલે આપણી હવીશ પૂરી કરવા માટે આપણી આવી રીતે આપણી જે જોવા જઈએ તો અનનેસેસરી બધી જે પેલી માગણીઓ છે એ પૂરી કરવા માટે આ ધરતી અધૂરી પડે છે. બાકી ખરેખર માણસની જરૂરિયાત છે. તમે જુઓ તો દરેકનો રોટલો, દરેકના માટે રોટલો કપડા, આ બધું જ એટલા પૂરતું જ હોય. જો બીજાને ચમકાવવા માટેની કોઈ વાત ના હોય તો આ ધરતી ઉપર ખૂટે ખરું? લાગે છે તમને એવું? કશું ખૂટે ખરું? આ સ્થિતિ છે. એટલે આ સ્થિતિમાં હકીકતમાં જોવા જઈએ તો આ વસ્તુ ઊભી થતી રહેલી છે. એટલે હવે એમાંથી શું છે, હવે આ જે વસ્તુ છે હવે એના લીધે શું છે કે આપણે જે આપણી જાતનું શરીર અને આપણે બંને એક જ સમજીએ છીએ એટલે બધા વસ્તુના લોચા ત્યાં ઉભા થયા છે. હકીકતમાં જોવા જઈએ તો શરીરની જરૂરિયાતો અલગ છે અને મારી પોતાની જરૂરિયાત અલગ છે. જીવનની જરૂરિયાત અલગ છે. જીવનને ભાવ જોઈએ છે અને શરીરને વસ્તુ જોઈએ છે, એને જીવવા માટેની વસ્તુ જોઈએ છે. આ બે વસ્તુના મિક્સ થઈ ગયું છે, ત્યારનો લોચો ઉભો થયો છે. હવે એને જુદું પાડવાની વાત છે, એ અહીંયા વાત છે. અને એ વાતમાં હકીકતમાં જોવા જઈએ તો તમે જુઓ તો શરીર એટલે આ એક જે જીવવા માટેની વાત છે એ તો વાત છે જ કે ભાઈ શરીરને અહીંયા ભૌતિક વસ્તુઓ જોઈએ છે અને અહીંયા ભાવ જોઈએ છે. આટલી વાત થયા પછી આગળની બીજી વાત પાછી આવી, સંગ્રહવાળી વાત આવી. એનાથી બીજી વાત આવી કે મારી જે સન્માનવાળી વાત છે, ભાઈએ છેલ્લે જે લીધું કે હકીકતમાં જોવા જઈએ તો આપણે પોતે જે સાધનથી સામાનથી સન્માનની આપણી વાત છે એ સામાનથી સન્માનની વાત ક્યાં આવી? મારી પાસે મોટો બંગલો હોય, મારી પાસે મોટી ગાડી હોય, બીજું હોય, ત્રીજું હોય તો મારો વટ પડશે. આ જે વાત છે, આ વાત જે છે એનાથી મને લોકો સન્માન આપશે, એ વાત જે હકીકતમાં આવી અને એના લીધે સામાન એકઠો કરવા માટે ભેગા આપણે આ વસ્તુ થઈ અને સામાન એકઠો કરવાની વાત થઈ, સામાન ભેગો કરવાની વાત થઈ અને એનાથી સન્માન મળશે.
પણ જે સામાન છે એ સામાન તો નિરંતર તો છે નહીં, સામાન તો બદલાતો જાય છે. આપણી બધી ભૌતિક વસ્તુઓ છે એ તો કોઈ નાશ પામે, કોઈ જૂની થાય, કોઈ આવું થાય તેવું થાય, એ તો પરિવર્તનશીલ છે. હવે એ પરિવર્તનશીલ છે અને આપણે સન્માન તો 24/7 જોઈએ છે. તો આ જે વસ્તુ ખરેખર જોવા જઈએ તો જે પરિવર્તનશીલ છે એ પરિવર્તનશીલ વસ્તુથી આપણે નિરંતર સન્માન જોઈએ છે. તો આ હકીકતમાં ખોટા એડ્રેસે પ્રયત્ન થઈ રહેલો છે કે ભાઈ આ જે વસ્તુથી હંમેશા જે છે ને, જો આ નિરંતર હોય તો એનાથી નિરંતર વસ્તુ મળે. હવે આ અનિરંતર છે તો પછી આ અનિરંતર જ મળે. એટલે આપણને કોઈ વખતે ઘડી કોઈ લાગે કે ના સારું લાગ્યું, ઘડી વારમાં ખરાબ લાગ્યું, કોઈ આ લાગ્યું, કોઈ મારું સન્માન કરતું નથી, કોઈ મારો આ બધું જ જે લાગ્યા કરે છે એનું કારણ આ છે. અને એક વાત વિચાર કરો કે ભાવ અને વિચારની સ્થિતિની વાત જે કરે છે સોમભૈયાએ બીજી બધી વાત નહીં, એમને એમની પોતાની જ વાત કરી આજે કે ભાઈ કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ વસ્તુથી અમને કોઈ જાતની તકલીફ, કોઈ વસ્તુમાં મને કોઈ હલાઈ શકતું નથી. આ સીધે સીધું ઉદાહરણ આપણા સામે દેખાય. તો એનો મતલબ ભાવ અને વિચારની સ્થિતિ જો ધીમે ધીમે એના ઉપર કામ કરવામાં આવે તો ભાવ અને વિચારની સ્થિતિ આવી રીતે લાવી શકાય છે. અને એવું ફક્ત સોમભાઈ માટે જ પોસિબલ એવું છે એવું નથી, આપણા બધા માટે પોસિબલ થાય એવું છે. સૌથી મોટી વાત આ છે. આમ તો શું છે કે કોઈ પણ જ્ઞાન ગમે તે કોઈ એક વિરલો, એકાદ બે વિરલા તરીકે કોઈ પણ એમને મળી જાય એ વાત જુદી છે, પણ સામાન્ય કોમન માણસને બધાને ટૂંકમાં શું છે કે આ વાત થઈ શકે એવી છે. અને આ ધરતી ઉપર બધા જ સુખી થઈ શકે એવું છે. અને આ ધરતી ઉપર બધા સુખી થઈ શકે એવું છે એવી ડિઝાઇન છે. તો હકીકતમાં જોવા જઈએ તો એવી ડિઝાઇન છે. અને એવી ડિઝાઇન હોય તો તમને કહું કે તમને બધાને આપણને બધાને એ સાંભળ્યા પછી જ એટલું સારું લાગે કે ખરેખર આ ધરતી ઉપર જો આવી ડિઝાઇન હોય અને આવી રીતે જો બધા જ સુખી થઈ શકે એવું હોત તો આ વાત સાંભળીને જ અંદરથી એક તો ખુશી આવે છે. આ લાગે છે કે નહીં? અને આ ડિઝાઇન, અને ખરેખર જો એવી ડિઝાઇન ના હોય ને તો પ્રકૃતિ અપૂર્ણ છે એવું સાબિત થાય. અને પ્રકૃતિ પોતાની જાતમાં અપૂર્ણ નથી, પ્રકૃતિ પૂર્ણ છે. એટલે એ સાચી જે કે છે ને કે સહી ઈચ્છા અધૂરી હોતી નહીં है और गलत इच्छा पूरी होती नहीं है. સહી ઈચ્છા કભી અધૂરી ના રહે, સાચી ઈચ્છા. અને ગલત ઈચ્છા એ કોઈ દિવસ પૂરી થાય નહીં. એટલે ગલત ઈચ્છા એટલે આપણી જે હવીશ છે. હવે આપણે સામાનથી સન્માન માટેની ઈચ્છા કરીએ તો ક્યાંથી પૂરી થાય? એ ગલત ઈચ્છા છે, એ પૂરી થઈ શકવાની નથી. એટલે આખી વાત છે ને એ હકીકતમાં એ થઈ. એમને આજે છેલ્લે આ ઉદાહરણ આપ્યું અને એમને જે પેટ્રોલનું ઉદાહરણ આપ્યું કે એમને જે ગાડી, લોખંડની ગાડી બનાવવાની જે વાત કરીને બધું, આપણે વિચાર કરો કે ધરતીને કશું જ આપી શકતા નથી, પાછું કશું આપી શકતા નથી. એક વખતે સંબંધની ખબર પડે આપણને, એક વખતે સંબંધની ખબર પડે. અને સંબંધની ખબર ક્યાંથી પડે? સંબંધ આપણો સંબંધ કોઈની સાથે કેવી રીતે છે? આજે તમને કહું કે પેટ્રોલ સાથે કે ધરતી સાથે આ તો નિર્જીવ સમજીએ છીએ, એની સાથે આપણા સંબંધની વાત ક્યાંથી કેવી રીતે કરી શકાય? તો સંબંધની વાત એટલા માટે કરી શકાય કે આ આખું જ બ્રહ્માંડ છે, આખું જે યુનિવર્સ છે, એ યુનિવર્સમાં આ જેને કહીએ કે એક માનો મહાન મોટો ગર્ભ છે. એ ગર્ભમાં ખાલી સ્થાન છે, એ ઉર્જા સ્વરૂપ છે અને એની અંદર આપણે બધા જ અંદર છીએ. એટલે શું છે કે એકચ્યુઅલી આપણા બધાના તાણાવાણા છે ને એક જ ગર્ભના માના સંતાન છીએ. એમાં તમને કહું કે આપણે પણ આવી ગયા, વૃક્ષ પણ આવી ગયું, વનસ્પતિ પણ આવી ગઈ અને ધરતી પણ આવી ગઈ, એવી અનેક ધરતીઓ પણ આવી ગઈ. આ બધા જ એક જ જગ્યાએ છીએ. અને એટલા માટે જ આપણને રોડ ઉપર કૂતરું મરી જાય છે તો પણ આપણને અંદરથી થાય છે કે ના થવું જોઈએ. યુક્રેનમાં યુદ્ધ થાય અને યુક્રેનમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ આવી રીતે માણસો મરી જાય છતાં પણ આપણને અંદરથી એમ થાય કે યાર આ બરાબર નથી. તો એનો મતલબ એ છે કે કોઈની કોઈ જગ્યાએ તાણાવાણાથી પેલા છીએ. અને એ આપણને અત્યાર સુધીમાં એ હજી લાગણી થોડી ઓછી કેમ થાય છે? એનું કારણ છે કે આપણે શરીર સાથે જોઈન્ટ થઈ ગયા છીએ. શરીર સાથે જોઈન્ટ થઈ ગયા છે એટલે આપણા સગાવાલા, હું, મારું ઘર અને મારા ભાઈઓ, એના સિવાયનું મને બીજું કોઈ દેખાતું જ નથી. મારું એમ કરતો કરતો છેલ્લે મારો દેશ સુધી પણ આખી વસ્તુ આવી થતી જાય છે. એટલે હકીકતમાં જોવા જઈએ તો આ આપણે ધરતી સુધીનો સંબંધ ગણો કે કોઈ પણ
અમેરિકાનો માણસ ગણો કે કોઈ પણ બીજો માણસ ગણો, તો એના સાથે આપણો સંબંધ આપણને એટલો હજુ નથી દેખાતો. એનું કારણ શું છે કે શરીર અને જીવન બંનેને આપણે જુદું જોઈ શકતા નથી. અને જુદું નથી જોઈ શકતા એટલે જે એકદમ મારા સગા ભાઈ માટે મને જે ભાવ થાય એ મને છેલ્લા વ્યક્તિ માટે ભાવ નથી થતો. એનું કારણ આ છે. અને એવો ભાવ મને એના માટે થાય, એવો જ ભાવ મને નિર્જીવ પદાર્થ, નિર્જીવ એટલે આપણે ભલે નિર્જીવ કહીએ છીએ પણ આજની તારીખમાં પૃથ્વી માટે પણ થાય, બધા માટે થાય. અને જે દિવસે મને આવા સંબંધની ખબર પડશે એ દિવસ સંબંધ હે તો શોષણ નહીં, શોષણ હે તો સંબંધ નહીં. તો આખી વાત એ હકીકતમાં જે દિવસે સંબંધ, તો કોઈ પણ જગ્યાએ ક્યાંય લેક્ચર આપવાની જરૂર નહીં પડે, કશી કોઈ જગ્યાએ કરવાની જરૂર પડે. માણસ જો એક વખત એનામાં સમજ આવી ગઈ તો તું ઓછું પાણી વાપર ને તું આમ કર ને તું આમ કર, એવી કોઈ વાત નહીં. સમજ આવી એટલે એની અંદરથી જે ભાવ છે કે ભાઈ આ મારો સંબંધ છે ને મારે તો આવી રીતે જ લેવાય. જેવું મુંબઈમાં કોઈના ઘરે જવું અને આવી રીતે જે રીતે હું રહી શકું એવું ભાઈએ જે ઉદાહરણ આપ્યું, તો એ પ્રમાણે કોઈ પણ જગ્યાએ શું છે કે એકચ્યુઅલી આવી રીતે જે જીવવાની વાત છે એવું દરેક વ્યક્તિ જો ધરતી ઉપર આવી રીતે જીવે તો હકીકતમાં આ સંબંધની વાત છે. અને આગળની યાત્રા ભાઈની પાસે સાંભળીએ આપણે. नमस्ते। और राजेश भाई हमारे इकलौते मित्र हैं जो उत्तराखंड से आते हैं और राजेश भाई का एजुकेशन का काफी अच्छा एक्सपोजर है। आप सभी को नमस्कार। तो जैसे सोम भैया ने बता दिया, मेरा नाम राजेश बहुगुणा है और उत्तराखंड में ऋषिकेश से हूँ और 2004 से विद्या से परिचय हुआ और संयोग से जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ था वो एजुकेशन से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन थी, तो तब से शिक्षा में ही कुछ काम कर रहा हूँ और इसी में अपनी यात्रा जारी है और अध्ययन लगातार जारी है। तो अभी इतना ही, धन्यवाद। हाँ जी, नॉन हिंदी लोगों को गुजराती कितनी समझ में आने लगी? नॉन गुजराती लोगों को, नॉन गुजराती लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को गुजराती कितना समझ में आने लगा? हाँ जी, चलिए। तो ब्रेक के पहले हम यहाँ थे कि इतनी लंबी यात्रा के बाद हमको सुख और सम्मान की कितनी क्लैरिटी हुई, कितना समझ में आया। और देखो ये दोनों यदि हमारी जिंदगी की धुरी देखें तो सुख सम्मान के साथ चलता है। सुख वो है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ और सम्मान ये है कि दूसरे मेरे बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। इतनी कहानी। तो अभी बताइए कि सुख और सम्मान के रूप में अभी यदि पिछले, आज 5वां दिन है कि चौथा है? चौथा दिन। तो आज चौथे दिन सुख और सम्मान के बारे में अपनी क्या क्लैरिटी बन गई है और उसके साथ हम आगे चलेंगे। तो बताइए क्या समझ में आया 4 दिन में? सुख क्या है? मानसिक अवस्था है, लेकिन है क्या? स्वीकृति। और स्वीकृति किसके लिए? व्यवस्था के लिए। इसका मतलब स्वीकृति किसके लिए? समाधान के लिए, है ना? तो समाधान बराबर सुख और समस्या बराबर दुख, ऐसा हमारे ध्यान में आ गया। और ये तो इतना कहने समझाने की जरूरत नहीं है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उठा के देखोगे तो इतनी ही बात है। रोज हम उससे गुजरते ही हैं। जब भी समस्या आती है और हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, इसी का नाम परेशानी है। कोई समस्या आती है, कोई सॉल्यूशन भी आ जाता है तो काम हो जाता है। चलिए, और इससे देखो ये ध्यान भी जा रहा है कि जिसको अभी तक हम सुख बोलते आए थे वो किसको सुख बोल रहे थे?
अभी तक किसको सुख बोल रहे थे? सुख के नाम पे हमारे पास कुछ लोकोक्तियां हैं जो लगभग सभी जगह काफी गहराई से बोली जाती हैं, सुनी जाती हैं। जैसे हमने सुना है कि सुख दुख साथ साथ है। कितने लोगों ने सुना? सभी ने सुना। हमने सुना है कि सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे, सुना है। दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता, सुना है। और संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा, ये भी सुना है। अब थोड़ा सा सोच के देखें कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि सुख दुख साथ साथ है। क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है? यदि सुख दुख साथ साथ है, इसका मतलब हमेशा खुश नहीं रह सकते, और यदि हमेशा खुश रह सकते हैं तो सुख दुख साथ साथ फिर नहीं हो सकता है। तो ये जितनी सारी बातें हैं आज तक जो हम बोल रहे थे कि दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता है, सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे, फिर हम किस सुख की बात कर रहे हैं? ध्यान में आ रहा है? यही सब बोलते आए हैं अभी तक। और फिर क्या बोला? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख कुलवंती नारी। तो ऐसा जब हम सब बोल रहे हैं तो ये समझने की जरूरत है कि हमारा सुख कहाँ पे है, किसको हम सुख बोल रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? कुछ सोचने का काम किया नहीं। हम अब तक स्वयं को शरीर मान के जिंदा रहने को जीना मानते रहे और शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता को ही सुख के रूप में पहचानते रहे। सुख दुख साथ साथ है का मतलब है कभी शरीर के लिए अनुकूलता होगी, कभी नहीं होगी। कभी कोई चीज खाने में ठीक लग जाएगी, कभी नहीं लगेगी। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमारा सारा सुख दुख शरीर का सुख दुख है, और हमारा सम्मान भी शरीर का सुख दुख है। क्योंकि सामान ज्यादा हो गया तो हमको लगता है सम्मानित हो गए, किसी ने ठीक से पूछ लिया तो लगता है सम्मानित हो गए, है ना। हम बात जरूर करते रहे, शब्द जरूर हमारे पास हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास। अभी हमारा आत्मसम्मान क्या है? बोलो। है? अभी तो आत्मसम्मान हमारा ईगो है। हम ईगो को आत्मसम्मान बोल रहे। तो भाई साहब हालत ऐसी है कि जीने की दुनिया में हमारा एक कदम नहीं रखा गया ठीक से, इतनी लंबी जर्नी के बाद जीना समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी दो बातें कही थी कि एक तरफ हम ईश्वर की तलाश करते रहे कि ईश्वर को पाने से सुखी हो जाए, ईश्वर प्राप्ति में सारा सुख है। हमारे पास दो ही धाराएं हैं, ईश्वर प्राप्ति में सारा सुख है कि शरीर प्राप्ति में सारा सुख है। ठीक है, ये दो धाराएं हमारे पास। दोनों धाराओं में मानव मिसिंग है, इसलिए मानव मिसिंग है तो परिवार मिसिंग है, तो समाज मिसिंग है, तो शिक्षा मिसिंग है, तो व्यवस्था मिसिंग है। बिना मानव को समझे हमने परिवार बसाया है, बिना मानव को समझे हमने शिक्षा बनाई है, बिना मानव को समझे हमने लोकतंत्र बनाया है ना, बिना मानव को समझे हमने पुलिस बनाई है, बिना मानव को समझे बाजार बनाया है। सब फ्लॉप शो है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव का अध्ययन नहीं हुआ है, हमारी मानव की समझ नहीं है ना। इसलिए ये पूरा दर्शन मानव पे काम करता है, मानव केंद्रित है। और मानव की समझ बन गई तो परिवार भी चल जाएगा, मानव की समझ बन गई तो मानव को समझ के हम शिक्षा को तय कर पाएंगे, मानव की समझ बन गई तो बाजार और लोकतंत्र और सब कुछ फिर तय हो पाएगा। तो अभी तक यदि सही अर्थों में देखें
हमारी बनाई हुई एक भी व्यवस्था नहीं चल पा रही है, एक भी। परिवार ही नहीं चला तो बाकी क्या चलेगा। इसलिए क्या बोला, 2 प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं है। एक प्रश्न, अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जिया जा सके ऐसी योग्यता हमारी धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, ईस्टर्न वेस्टर्न कुछ भी करके नहीं आई। मानव के साथ जीने का विश्वास नहीं है, कुछ भी कर लो। साधना भी व्यक्तिगत मार्ग है, भोग भी व्यक्तिगत मार्ग है, भोग भी व्यक्तिगत व्यक्तिवाद है, साधना भी व्यक्तिवाद है। साधना में भी परिवार टूटे हैं, क्योंकि जब भी किसी को ख्याल आया कि जिंदगी क्या है, वो घर छोड़ के कहीं और चला गया। और भारतीय महिलाओं ने इसको बखूबी झेला है, और भारतीय महिलाओं के मन में धर्म और अध्यात्म का डर गहरे में बैठा हुआ है कि जब भी ये पुरुष इस टाइप के क्वेश्चन करना शुरू करेगा, उसके बाद ही घर छोड़ के भाग जाएगा। भारत में ये बहुत स्वीकृत या बहुत एक देखने लायक सीन है कि हमारे घर में सन्यासी आएंगे तो हम साष्टांग प्रणाम करेंगे और इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि अपना बच्चा उस रास्ते पे ना जाए। एक तरफ हम उसको नकार भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नकारने लायक बात भी नहीं। लोगों ने हिम्मत की है ना। हम सारी जिंदगी इंद्रियों से जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत की है कि हम इंद्रिय सुख की ओर नहीं जाएंगे। ये हिम्मत की बात है। ज्ञान की तलाश में अपनी जिंदगी लगाई है, ये हिम्मत की बात है। उस हिम्मत को हम नमस्कार करते हैं। उसके साथ जो कुछ उपलब्धियां भी होंगी उनको भी नमस्कार करते हैं। लेकिन हर बच्चा ऐसे ही करे। बुद्ध काल में यही बोलते हैं कि जब ज्यादा लोग सन्यास की ओर जाने लगे तो मंदिरों के ऊपर प्रजनन क्रिया को अंकित कराने का काम उसी काल में शुरू हुआ, कि जब अधिकांश लोगों ने यह मान लिया कि ईश्वर प्राप्ति में ही सारा सुख है और सब गृहस्थ को छोड़ के जाने लगे। तो जो गृहस्थ पूर्वक जीना और बच्चे पैदा करने या गृहस्थ में जीना का काम इम्पोर्टेंट है, इसलिए खजुराहो के मंदिर और तमाम मंदिरों में, हमारी पूजा स्थलियों में हमने गृहस्थ को लेके आए ताकि लोग गृहस्थ का सम्मान कर पाए, ऐसा भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जब हम ये कह रहे हैं कि सुख दुख साथ साथ है, तो हम शरीर के सुख दुख की बात कर रहे हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि दुख के बिना सुख का पता नहीं चलेगा, इसका मतलब गर्मी के बिना एसी का पता कैसे चलेगा। पैसे का अभाव देखा है तब पैसे की इंपॉर्टेंस कर पाओगे। बीमारी देख ली, उसके बाद स्वास्थ्य का पता चलेगा। जब हमारे पास सही नहीं है तो क्या बोलते हैं, अभी अब आप ज्यादा दुखी हो जाओ, अपने से ज्यादा दुखी लोगों को देख लो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं समाज में। जब आप ज्यादा दुखी हो जाओ तो अपने से ज्यादा दुखी लोगों को देख के आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। ये राहत पाने का तरीका नहीं है। मेरी टांग टूट गई तो मैं किसी ज्यादा डबल टांग टूटी हुई आदमी को देखना चाहूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुख की हमारी क्लैरिटी सारी शरीर पे निर्भर है। सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे। मिठाई मीठा खाया तो मीठे से बोर होते हैं। नमकीन खा के मीठे की इच्छा, ठंडी के बाद गर्मी की इच्छा, गर्मी के बाद बरसात की इच्छा। तो भौतिक रासायनिक संसार परिवर्तनशील है। कोई भी भौतिक सुख की निरंतरता नहीं है, इसलिए भौतिक सुखों से हम बोर हो जाते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी पत्नी आपके साथ विश्वास के साथ जी रही है और आप विश्वास के साथ जीते जीते बोर हो गए हैं, अब आप उसको बोलो कि बीच बीच में धोखा दे ताकि मैं विश्वास को समझ पाऊं? ऐसा हो? अच्छे से बैठ जाओ, सूटकेस बाजू में कर दो, थोड़ा थोड़ा ऐसे सरक जाओ। ध्यान में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे सेंटेंस अपने आप में गलत हैं। सुख दुख साथ साथ नहीं है। नासमझी का नाम दुख है, समझदारी का नाम सुख है, और समझदारी पूर्वक सुख ही सुख है। दुख नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, नेचर में ही नहीं है। दुख नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। देखो, अस्तित्व में गाय है, बैल है ना, मकान है, घोड़ा है, बकरी है, पेड़ है, नीम है। कोई चीज है दुख नाम की जिसका नाम दुख हो?
इसका मतलब है दुख नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। हम सच्चाई को नहीं समझते हैं, इसलिए हमने परिभाषा दिया नियम का विरोध ही दुख है। नियम को ना समझना ही दुख है, जिंदगी को ना समझना ही दुख है। धीरे से क्या ध्यान चला गया? सुख दुख साथ साथ है, ये भी गलत है। दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता है, इसका भी कोई सार नहीं है। क्योंकि ये तमाम जो कुछ भी बात कर रहे हैं, हम क्षणिक सुख की बात कर रहे हैं, शरीर के सुख की बात कर रहे हैं। विश्वास से हम कभी बोर नहीं होते हैं। बच्चे को धोखे के बाद विश्वास का पता चलता है कि विश्वास के साथ ही विश्वास का पता चलता है? एक छोटा बच्चा धोखे को पहचान के विश्वास को पहचानता है कि विश्वास को विश्वास से पहचानता है? तो कैसे बोल रहे हैं हम कि दुख के बिना सुख का पता नहीं चलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी अभी तक हम सुख दुख के बारे, जो कुछ भी हमारी थियरीज हैं, ज्ञान है, मान्यताएं हैं, ये सारी मान्यताएं शरीर से जुड़ी हुई मान्यताएं। अब पहला सुख घर में हो माया, अब समझ में आया? क्या आया? घर में माया 1,00,000 करोड़ हो जाए, जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। तो पैसे की कमी दुख का कारण हो सकती है, लेकिन कितना भी पैसा हो, उसकी वजह से पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, घर में बंटवारा नहीं होगा, हमेशा प्यार से रहेंगे। इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ हमारे ध्यान में आया पहला सुख घर में हो माया, ये सुख है कि सुविधा है? सुविधा है। दूजा सुख क्या? दूजा सुख, पहला सुख घर में हो माया, दूजा सुख पहला निरोगी काया। हाँ, निरोगी काया, निरोगी काया। अब निरोगी काया हो जाए, आपकी काया कितनी भी स्वस्थ रहे, उससे आपके विचार स्वस्थ नहीं हो जाते। निरोगी काया का आपके विचार के स्वस्थ होने से कोई लेन देन नहीं है। एक कमजोर शरीर का आदमी वैचारिक रूप से बहुत ऊंची स्थिति में हो सकता है, और हट्टा कट्टा मोटा पहलवान बहुत कमजोर मानसिक स्थिति में भी हो सकता है। तो शरीर के स्वास्थ्य का क्या बोल रहे थे? जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। ये ठीक है कि जैसा रहे मन वैसा खाए अन्न? आज मन करता है तो ढाबा हो ही जाता है। तो मन के अनुसार तन चलेगा कि तन के अनुसार मन चलेगा? मन ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मन के अनुसार तन चलेगा। तो तन कितना भी स्वस्थ रहे, ये ठीक है कि बीमार तन से समझने का काम नहीं हो सकता। समझने के लिए शरीर स्वस्थ हो, इस बात की आवश्यकता है। लेकिन शरीर स्वस्थ हो जाएगा, इसकी वजह से मैं मानसिक रूप से जागृत हो जाऊंगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी साधन है, सुविधा है। शरीर समझने के लिए सुविधा है, पैसा भी शरीर को जिंदा रखने के लिए सुविधा है। और तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी। आप जिंदा हैं कि जी रहे हैं? अब तक शिविर में आने के पहले जिंदा थे कि जी रहे थे? जोर से बोलो। जिंदा थे। आपके बच्चे जिंदा रहे कि जिए? जिए। आपकी मानेंगे तो जिएंगे कि जिंदा रहेंगे? जिंदा रहेंगे। माने कि नहीं माने? नहीं माने, वही कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आपके बच्चे आपकी नाई माने वही ठीक है। तो इससे ये समझ में आया पुत्र का आज्ञाकारी होना अच्छी बात नहीं। हाँ, और आज्ञाकारी होना वैसे भी अच्छी बात नहीं। समझना अच्छी बात है, समझ के स्वानुशासित होना अच्छी बात है। आज्ञाकारी तो गुलाम होते हैं। हमको गुलाम पैदा करने हैं कि समझदार लोग पैदा करने हैं? तो आज्ञा मानना अब अच्छी बात नहीं है। अनुशासन अच्छी बात नहीं, स्वानुशासन अच्छी बात है। स्वानुशासन पूर्वक सामने वाला जी सके, इसके लिए क्या करना है?
बढ़िया। चौथा सुख कुलवंती नारी। ये नार क्यों नहीं होता है ये भी आज तक समझ में नहीं आया। तो पुरुष ने सारी बात लिखी होंगी इसलिए स्त्रियों के लिए लिख दी होंगी, है ना। तो इसका समझ, यदि कुलवंती नारी हो भी गई तो कुलवंती नारी का मतलब है वो आपको दुख नहीं देगी, इतना ही कर सकती है। खाना वाना ठीक से मिल जाएगा, आपको तंग नहीं करेगी, है ना। लेकिन आपने जो अपने भीतर भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता पाल रही है, उसको कुलवंती नारी क्या करेगी। इसका मतलब दुखी रहने के लिए आपको कुलवंती नार का भी कोई मतलब नहीं है। आपका दुखी रहना आपके भाव और विचार की यात्रा है, आपके भीतर कंपैरिजन है, इसमें कुलवंती नार क्या करेगी। आप दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को असफल मानते हैं, परेशान होते हैं, इसमें कुलवंती नारी क्या करेगी। तो कुलवंती नार का होना भी, आज्ञाकारी पुत्र का होना भी, अपने बाप का जागृत हो जाना भी अपने लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि फाइनली मेरा सुख दुख मेरे भाव और विचार के साथ टिका हुआ है। ये समझ में आने से हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि वाकई में अभी तक हम किसको सुख बोल रहे थे, इतनी सारी मेहनत करके क्यों सुखी नहीं हो रहे हैं। क्यों सुखी नहीं हो रहे हैं? क्योंकि एड्रेस ही गलत है। बार बार एक ही बात ध्यान में आती है कि हमारा सुख का एड्रेस गलत है, सम्मान का एड्रेस गलत है, जिंदा रहने जीने का एड्रेस गलत है, सारे एड्रेस ही गलत हैं, अधूरे हैं। तो कितनी भी मेहनत करें हम जिंदगी को नहीं पाएंगे। बढ़िया। उदास हो जाते हो आप लोग, है? मैं कुछ गलत बात कहता हूं? चलो आगे चलते हैं। तो काम की बात क्या निकली? तो काम की बात अब ये निकली कि सुख क्या है? समाधान बराबर सुख, है ना। और सम्मान क्या है? सम्मान क्या है? मेरा सुख ये है कि मैं प्रकृति के नियम को समझता हूं, जीने के स्वरूप को समझता हूं, संबंध को समझता हूं और मैं खुश रहता हूं। लेकिन मेरा सम्मान क्या होगा? किसी भी मानव का सम्मान इतना ही है कि हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। मेरी उपयोगिता ही मेरा महत्व है। मानव लक्ष्य के अर्थ में मेरी उपयोगिता ही मेरा महत्व है, यही मेरा सम्मान है, यही मेरी पहचान है, यही मेरी सफलता है। जैसे मेरा सम्मान आपकी नजरों में बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। क्यों? क्यों? क्यों है? हाँ, उपयोगिता। यदि आप इस पूरी बात को समझ के खुश होते हैं, आपकी जिंदगी की समस्याओं का निराकरण होता है और आपको लगता है एक बेहतर जिंदगी संभव है, तो सहज रूप में इसकी स्वीकृति का नाम सम्मान है। जैसे मैं ये स्वीकारता हूं कि किसी के कारण मेरी जिंदगी में कोई आराम आया है, इस दर्शन के कारण मेरी जिंदगी में कोई सम्मान आया है, तो दर्शन के प्रति सम्मान, जिस व्यक्ति के माध्यम से दर्शन मिला उसके प्रति सम्मान, ऐसा हो ही जाता है। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। तो हमको सम्मान के लिए अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल समझने की आवश्यकता है। समझ की रोशनी में अपनी उपयोगिता के साथ जीने की आवश्यकता है। तो मैं मानव लक्ष्य के अर्थ में काम कर रहा हूं कि नहीं? क्या काम कर रहा हूं? सभी समझदार हो जाएं, मैं भी समझदार हो जाऊं, हम सभी समझदार हो जाएं, इसके लिए मैं कोई प्रयास करता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव लक्ष्य के अर्थ में अपनी उपयोगिता को साकार करने का नाम सम्मान है। कितना बढ़िया, आराम का काम हो गया। इसलिए मैंने क्या कहा, अभी तक जैसा हम जी रहे हैं, हमारे कर्मों को देख के हमको ये लगता ही नहीं है कि सही अर्थों में वो असली वाला सम्मान मिलेगा, इसलिए हम नकली वाले सम्मान के पीछे दौड़ते हैं ना। 6 प्रकार के सम्मान मैंने आपको बताए। कितने लोगों को याद है 6 प्रकार के सम्मान? आज अपने घर में जाके घर वालों को बताना। हाँ है? हेलो। मानव लक्ष्य के अर्थ में अपनी उपयोगिता के साथ में जीना हमारा सम्मान है।
मानव लक्ष्य को साकार करना अपना सम्मान है, वो अपनी खुशी भी है। सब एक साथ ही चलता है, सब एक साथ ही चलता है। हेलो हाँ जी। सर, मेरा एक प्रश्न है। सामान और सम्मान के बारे में हमने जाना, तो इसी के बारे में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है हाँ, कि जब कोई सेलिब्रिटी सादा जीवन जीती है तो उसकी चारों ओर प्रशंसा होती है, उसको अधिक सम्मान मिलता है। लेकिन एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति यदि तुलनात्मक रूप से सादा जीवन जिए तो उतनी मात्रा में उसको सम्मान नहीं मिलता। तो इसके पीछे क्या मानसिकता है? देखिए, कृपया करके सादा जीवन ना जिए, सही जीवन जिए। सर, ये सादा जीवन काफी महंगा होता है, आपकी जानकारी के लिए। क्या बताऊं, सब रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, इसलिए संभाल के बोलना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी चाहना है कि लोग हमारे को अप्रिशिएट करें, ये अपने आप में एक मानसिक गरीबी है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से सम्मान पा भी जाएगा तो भी बात नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं खुद को अप्रिशिएट कर पाता हूं हमेशा, तो दूसरे भी मुझको अप्रिशिएट कर पाते। तो कपड़े पहनने से बात नहीं बनेगी, आचरण को पहनने से बात बनेगी। तो मानवीय आचरण को पहन लीजिए। मानवीय आचरण को पहनने से अपने में तृप्ति आती है। उस मानवीय आचरण को सभी पहनना चाहते हैं और सभी आपके साथ चलना चाहते हैं। इसी का नाम सम्मान है। यानी यहाँ पर आचरण के आधार पर ही जो, और कपड़े के आधार पर क्या सम्मान होगा? कपड़ों के अलावा और भी जो अपने देश में देखो, ये प्रॉब्लम है। या तो आप इतना कमा के दिखाओ जो किसी ने ना कमाया हो, या इतना छोड़ के दिखाओ जो किसी ने ना छोड़ा हो। बीच वाले आदमी की कोई पूछ नहीं। पहले आप इतना कमा के बताओ जो किसी ने ना कमाया हो, तब आपको पूछेंगे। फिर आप बिल्कुल छोड़ के दिखाओ, एकदम त्यागी तपस्वी होके दिखाओ। ये बीच में रहने वाले आदमी का कोई जगह हमने नहीं बनाया। इसलिए हमको एक्सट्रीम पे ही जाना होता है। या तो इतना कमाएंगे या इतना छोड़ देंगे। दोनों ही तरफ साधन को पहचाना है, किसी आचरण को नहीं पहचाना। छोड़ा तो साधन छोड़ा, पकड़ा तो साधन पकड़ा, दान दिया तो साधन ही दिया। साधन से आदमी की पहचान है, आदमी की स्वयं से कोई पहचान नहीं बन रही। तो इसका मतलब है ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो आचरण वो चीज है, मेरा आचरण वो चीज है, मेरा भाव और विचार वो चीज है जो मुझको हमेशा तृप्तिदायक लगता है। दूसरा भी उस आचरण के साथ होना ही चाहता है। मैं दूसरे के लिए सहयोगी हो जाता हूँ तो वो भी गदगद हो जाता है। यानी कि हमारे पास जो साधन है उनका उपयोग करते हुए हम आचरण की श्रेष्ठता को सिद्ध करें। हाँ, तो इसलिए सूत्र है, एक व्यक्ति उन्हीं साधनों को पाकर उन्नता अवकाश की ओर जाता है, दूसरा व्यक्ति उन्हीं साधनों को पाकर, है ना, विनाश की ओर जाता है। साधन सेम है। हर कोई वही 2 रोटी खाता है, हर कोई वही 2 कपड़े पहनता है, हर कोई वही एक मकान में रहता है, कोई एक गाड़ी घोड़ा होता है। एक उन्हीं साधनों को इस्तेमाल करके जिंदगी पा जाता है और एक दूसरे की जिंदगी छीन लेता है। इसका मतलब साधन की क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी मानव की है कि उन साधनों का उपयोग मानव लक्ष्य के लिए किया गया तो हम जिंदगी पा लेते हैं। उन्हीं साधनों का उपयोग दूसरों से कंपेयर करने में, दूसरों को छोटा दिखाने में, अपने आप को बड़ा दिखाने में किया गया तो कुल मिला के जिंदगी तो निकल ही जाती है, हाथ में कुछ नहीं आया। जी बढ़िया। तो क्या करना है? तो सादगी वादगी से काम नहीं चलेगा, समझदारी से जीने की जरूरत है ना। समझदारी का मतलब मानव लक्ष्य। तो इस तरह से हम बात करेंगे तो हम ज्यादा व्यवहारिक होकर बात कर पाएंगे। चलिए, तो कहां पहुंच गए? तो हम पहुंचे, सुख क्या है? समाधान बराबर सुख।
और सम्मान क्या है? जीने देना ही जीना है, बाकी खाना पीना है। जीने देना ही जीना है। हम दूसरों के जीने में जितना सहयोगी हुए, यही मेरा सम्मान है। और दूसरों के जीने का मतलब है दूसरा भी समाधान समृद्धि के साथ में जी सके। तो हमारे परिवार के माध्यम से कितने परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो पाए, कितना ये समाज भय से मुक्त हो पाया, ये हमारी कमाई है। बाकी खाना पीना। बढ़िया। ये समझ में आता है, ये समझ में आता है, तो फिर हम दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि देखो, हम बात करते हैं, एक चीज होती है कीमत, एक चीज होती है मूल्य। मूल्य का मतलब उपयोगिता और कीमत का मतलब प्राइस। तो मैं कहता हूं कि जैसे आलू की कीमत इंटरनेशनल आइटम है, आलू की कीमत और आलू का मूल्य क्या है? आलू की कीमत क्या होगी? 4 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। अब एक बात समझ में आ गया, सभी जगह आलू की कीमत नहीं होती है, उसका आलू को पैदा करने में लगा श्रम मूल्य होता है। भूल जाते हो? परिचय शिविर 5 बार। इसका मतलब ये हुआ, आलू की उपयोगिता क्या है? तो आलू में जो पोषण है, कार्बोहाइड्रेट है, उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, उसको हम उसका मूल्य कह रहे हैं। इससे एक बात ये भी समझ में आया कि सृष्टि में सभी इकाइयों की जो उपयोगिता है वो शाश्वत है, निश्चित है, वो कभी नहीं बदलती जब तक भ्रमित मानव उसमें हस्तक्षेप ना करे। तो इसका समझ में आया कि 2000 साल पहले भी आलू ऐसा ही था, 2000 साल बाद भी आलू ऐसा ही रहेगा। यदि मानव उसमें कोई हस्तक्षेप करता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड और तमाम किसी और चीज में चला जाता है, तो उसका पोषण वैल्यू घट सकता है। तो ये हमको समझ में आया। अब मैं सामान्य एग्जांपल लेता हूं, पेन का कीमत क्या होगा? श्रम। तो पेन में चाहे डायमंड लगा दें, चाहे पेन गोल्ड का बना दें, फाइनली पेन की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता वही रहेगी, उपयोगिता नहीं बदलेगी। तो पेन की जो प्राइस है वो उसका श्रम मूल्य, और उपयोगिता है कि वो लिखने के काम आता है। बढ़िया हो गया। तो कितने लोग को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। गुड। अब आलू के नीचे अपना नाम लिखो और दोनों कॉलम भरो। लिखो। हाँ जी, लिखिए और बताइए आपकी कीमत क्या है, आपकी उपयोगिता क्या है। लिख के देखिए, लिखते समय ज्यादा पता चलता है, सोचते समय उतना नहीं लगता। आलू के बारे कूद कूद के बता रहे थे। भैया ये बोर्ड साफ करना। एक जन आ जाओ बस। हाँ जी,
किसने लिखा हो तो बताएं। हाँ जी, लिखा, किसने लिखा? ये लोग पहली बार फर्स्ट टाइम शिविर कर रहे हैं, पुराने लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं, किसी ने लिखा हो तो बताइए। लिखा? बोलिए बोलिए। नहीं? हाँ जी, तो चलिए मैं चलता हूँ। हाँ जी, बोलिए। आत्मा यूनिवर्सिटी, इस बार ये लोग बहुत चुप हैं। क्या? बड़ौदा, KGIT, अच्छा दूसरा चाहिए इसलिए चुप। सभी लोग रिपीट कर रहे हैं, आप अकेले रिपीट कर। कितने लोग आए हैं टोटल? 5, 12, 12 है। जोरदार ताली। देखिए, बड़ौदा KGIT से आप लोग हमेशा किसी भी शिविर में 10-12 लोग आते रहते हैं और धीरे धीरे अपने को देखो। मजा ये है कि अब कॉलेज को ट्रांसफॉर्म करने की जिम्मेदारी आप लोग ले, समीर भाई की ना रहे। समीर भाई से आप बोलो कि क्या सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट आप बताओ और सही अर्थों में आप कॉलेज को लेके चलो तो मजा आएगा। बहुत बढ़िया, गुड। तो बाकी लोग कैसे चुप चुप रहते हैं? 12 लोगों में से एक ही ने शिविर किया हुआ है ना, 11 लोग तो नहीं किए हुए हैं। हाथ उठाओ, कौन कौन है? 1 2 3 4 5, ये एक लाइन में है और पीछे 2 लाइन। मैं ठीक चल रहा हूं ना? कोई गलती तो नहीं है? तो बताइए। सर इसका उत्तर जो वो मेरे पास है कि मेरी कीमत मेरे द्वारा किया गया श्रम है और मेरा। कर रहे हैं? हाँ। पहले नहीं किया? नहीं। पक्का? हाँ। YouTube भी नहीं? नहीं। चलो बढ़िया। और मेरा मूल समझदारी से सोचने की क्षमता है। बढ़िया, कुछ अच्छी बात आपने कही है। तो देखिए, एक तो ये समझ में आ गया कि मेरा भी जो श्रम मूल्य है, मैं किसी कंपनी में काम करूं, खेत में काम करूं, तो सुबह से शाम तक मैं जो भी कुछ काम करता हूं, वो जो मेरी सैलरी है वो बेसिकली मेरा श्रम मूल्य है। लेकिन मेरा मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? तो मूल्य को कह रहे हैं, देखो कई बार आ चुका है, लेकिन बार बार आने से कोई चीज स्थिर होती है। इस पूरे शिविर से एक चीज भी लेके चले जाओगे कि मानव मूल्य के मानव लक्ष्य के साथ जीना ही जीना है, बाकी खाना पीना है। इतनी बात भी पकड़ में आ गई और ये मानव लक्ष्य अपने को ठीक से स्वीकार हो गया, हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्या मतलब? तो एक है कि स्वयं की, जैसे मैं पूछूं कि आपकी उपयोगिता क्या है, क्यों जिंदा हो? क्यों जिंदा हो भाई? आपकी उपयोगिता क्या है? क्या उपयोगिता है आपकी आज की डेट में? तो आपको लगता है हमसे परिवार चल रहा है, हमसे कॉलेज चल रहा है ना? परिवार से पूछो, बोलता है इन्हीं से दुखी हैं। और कॉलेज में पूछो, बोले इनका कोई काम नहीं है। तो हमको लगता है कि पता नहीं हमसे ही सब कुछ चल रहा है, हमारे साथ के लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम यही है। कितने लोग सहमत है इस बात से? ये सब कंफ्यूजन है ना। हम अपने आप को जितना इंपॉर्टेंट माने रहते हैं, हमारा परिवेश हमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा है। ये घर में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। इसका क्या कारण है? तो इसका एक ही कारण है, स्वयं के लिए उपयोगिता। मानव की उपयोगिता 4 डायमेंशन में ही हो सकती है। स्वयं के लिए उपयोगिता, स्वयं की परिवार में उपयोगिता, स्वयं की समाज में उपयोगिता, स्वयं की प्रकृति के साथ में उपयोगिता। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम अपनी उपयोगिता परिवार में देख रहे, फैक्ट्री में देख रहे, समाज में देख रहे, प्रकृति में देख रहे। पहला वाला काम हुआ नहीं।
तो पहला ये बताइए कि आपकी अपने खुद के लिए क्या उपयोगिता है, स्वयं के लिए उपयोगिता है। हाँ, स्वयं के, मेरा शरीर मेरे लिए साधन है, किस काम के लिए है? मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो बेसिकली स्वयं के लिए उपयोगिता है कि मैं समाधानित हो जाऊं, मैं समझण के साथ में हो जाऊं। तो मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। एक ही काम हमारा मौलिक है, मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को मैंने पूरा किया कि नहीं किया, इस जिम्मेदारी को मैंने स्वीकार किया कि नहीं किया। अभी स्थिति कैसी है? मैं क्यों दुखी हूं? मैं पत्नी के कारण दुखी हूं, मैं पिता के कारण, बच्चे के कारण, जॉब के कारण, सरकार के कारण, किसी और के कारण। अभी मेरा दुख भी दूसरों पे निर्भर है, मेरा सुख भी दूसरों पे निर्भर है। तो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है कि दूसरों के हाथ में है? दूसरों के हाथ में। जब भी मेरा दुख किसी दूसरे पे निर्भर है तो मेरा दुखी होना निश्चित है। तो यहां से ये समझ में आया कि हमने स्वयं के लिए उपयोगिता का काम नहीं किया है और हम परिवार के लिए उपयोगी होना चाहते हैं। तो अब क्या चीज के लिए उपयोगी हो सकते हैं परिवार के लिए? पैसा कमा के दे सकते हैं, खाना बना सकते हैं, टाइम से उठा के बच्चे को खाना खिलाते, तंग करते हुए खाना खिला सकते हैं। इतनी ही उपयोगिता हो सकती है। तो अभी हमारी परिवार में हमारी उपयोगिता जिंदा रहने के अर्थ में है और जीना मिसिंग है, उसी का गिला शिकवा शिकायत है। तो जिंदा रहने के अर्थ में भी जो हम मेहनत कर रहे हैं उसकी स्वीकार्यता सामने वाले के पास नहीं है। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन गिला शिकवा शिकायत इतना हो जाता है कि वो जो मेहनत कर रहे हैं वो भी प्रतिक्रिया में बह गया। तो काम की बात क्या निकली? स्वयं के लिए उपयोगिता का मतलब है मेरा समझदार होना मेरी जिम्मेदारी है भाई, मेरा खुश रहना मेरी जिम्मेदारी है। एक आदमी घर में खुश नहीं रहता है, पूरे घर का माहौल बिगाड़े रहता है। एक आदमी घर में खुश रहता है, पूरे घर के माहौल को संभाले रहता है। तो ये जिम्मेदारी को अपने आप में स्वीकारना कि मेरा खुश रहना ये किसी दूसरे का काम ही नहीं है। यदि दूसरा मेरे साथ अच्छा व्यवहार भी करता है, अच्छा खाना बना के भी देता है ना, उससे मेरे को अच्छा ही लगता है, अच्छा हो नहीं जाता है। ये जो भाव और विचार की 24 घंटे की धारा मेरे भीतर बह रही है, इसको दूसरा नहीं संभालेगा, इसको कोई महापुरुष भी नहीं संभाल सकता। इसको मेरे लिए मुझी को संभालना होगा। दूसरा मेरे को मार्गदर्शन दे सकता है, सहयोग दे सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम मिसिंग है, इस पे हमारा ध्यान नहीं है ना। हमने सब कुछ ईश्वर कृपा, देव कृपा, तमाम चीजों पे डाल रखा है। ईश्वर कृपा हो गया, ईश्वर कृपा हो गया कि नहीं हुआ? है ही। खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है। सभी इकाइयां ऊर्जा में अपनी अपनी पात्रता के अनुसार ऊर्जित हैं। ये खाली स्थान का ऊर्जा स्वरूप होना ईश्वर ऊर्जा स्वरूप है और अपनी पात्रता अनुसार सभी इकाइयों के लिए उपलब्ध है। ये ईश्वर की कृपा है। तो ईश्वर कृपा सदा सदा बनी ही हुई है, इसके लिए हमको अलग से कुछ नहीं करना। ईश्वर कृपा बनी हुई है। कौन सी कृपा है जिसके कारण सब कुछ रुका हुआ है? स्वकृपा। स्वकृपा का मतलब है समझने का काम मुझी को करना है। मैं ईश्वर में हूं, मैं ईश्वर में अनुभूत हो सकता हूं, उसके लिए मेरी पात्रता को विकसित करना मेरा ही काम है। मेरी पात्रता मैंने विकसित नहीं किया है, इसलिए मैं स्थूल के साथ ही जीता हूं, जिंदा रहता हूं। सूक्ष्म के साथ, नियम के साथ जीना होता है। नियम की मेरी समझ नहीं है, इसलिए खा पी के सबके साथ गिला शिकवा शिकायत करता हूं। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया है? क्या लग रहा है? डिजाइन देख रहे हो? ज्वेलरी का डिजाइन अलग बात है, एग्जिस्टेंस का डिजाइन अलग।
मजा आएगा। हो सकता है आपका डिजाइन और इम्प्रूव भी हो जाए, कि बात तो अंततः आदमी के साथ ही करनी। तो इससे ये समझ में आया कि यदि मैं एक मानव के रूप में समाधानित होता हूं तो मेरे परिवार के सारे लोग समाधानित हो जाएं, स्वयं में तृप्ति मिल जाए, संबंध में तृप्ति मिल जाए, तो परिवार में समृद्धि आ जाए। तो समाधान के साथ में समृद्धि परिवार में आ जाए। समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव। मैंने किया था ना, शुरू में रखा था ना। तो परिवार में समृद्धि आ जाए, ऐसा मेरा परिवार समाधान और समृद्धि के साथ में हो जाए, तो मैं दूसरे परिवारों के साथ भी सभी लोग समझदार हो जाएं, सभी परिवार समृद्ध हो जाएं, ताकि ये समाज अभयता को पा जाए। ये उसका नेक्स्ट आउटकम है। और प्रकृति की बात करते हैं तो जड़ चैतन्य, तो सभी मानव समझदार हो जाएं, सभी परिवार समृद्ध हो जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए और प्रकृति में सह अस्तित्व, सारा इकाइयां जो कुछ भी है वो इंटरडिपेंडेंस है, ये साकार हो जाए। तो इसी को कहा मानव लक्ष्य। तो मानव लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, यही मानव लक्ष्य है। यही मानव लक्ष्य है। तो बेसिकली मानव लक्ष्य से कम में एक मानव का स्वयं का सुखी होना, एक मानव का स्वयं का मानव लक्ष्य की योग्यता मुझ में है, मानव लक्ष्य की समझ मुझ में है, इसका नाम सुख है। इसको साकार करने जाता हूं, दूसरे भी सुखी होते हैं, यही मेरी उपयोगिता है, यही मेरा सम्मान है। बढ़िया। बात पहुंची? क्या समझ में आया इस चर्चा में? कि मानव लक्ष्य की पूर्ति ही अपनी उपयोगिता है। मानव लक्ष्य की पूर्ति ही अपनी उपयोगिता है और यही मेरा सम्मान है, यही मेरी खुशी। तो देखिए, इतनी बात समझ में आने के बाद में अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम एक नया अर्थशास्त्र लिखते हैं। एक अर्थशास्त्र वो था जो हमने शुरू में लिखा था, आवश्यकताएं असीम है। क्या था? लिखा था कि आवश्यकताएं असीम है और साधन सीमित है। ये हमको पढ़ने से ही डराता है, भय पैदा करता है। जबकि नेचर में पता चला, अब हम एक सही अर्थशास्त्र लिखते हैं तो पता चला कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं, इस अर्थ में सीमित हैं। कब वो बीच में मिट गया वो बोर्ड, उसको दोबारा एक बार लाना पड़ेगा। तो हमने चर्चा किया था कि हमारी सारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी सारी प्रॉब्लम इतनी है, संसार की सारी समस्याओं की जड़ इतनी है कि सामान से सम्मान की तलाश और सुविधा से सुख की तलाश। इसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं। दुनिया का सारा अपराध, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक, जो कुछ भी कहें, वो टोटल अपराध केवल इन दो लाइन के आधार पर है कि हम सामान से सम्मान की तलाश में हैं। यदि सामान से सम्मान की तलाश में है तो एक व्यक्ति को कितना चाहिए? सबको वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है। ये नंबर 1 बनना अपने आप में एक बीमारी है। हम श्रेष्ठ परफॉर्म करें, देखो ये एक मतलब समझने लायक बात है कि उससे हमारी मानसिकता कैसे काम करती है। दिल्ली में चूंकि लगातार टीचर्स और प्रिंसिपल्स के साथ काम करते रहे तो कुछ एग्जाम्पल उनके हिसाब से बनाए। जैसे मैं कहूँ कि 3 प्रिंसिपल हैं,
एक प्रिंसिपल ऐसा है जिसको लगता है बस प्रमोशन हो जाए यही जिंदगी है। दूसरा प्रिंसिपल ऐसा है कि उसको लगता है कि मेरा स्कूल सबसे आगे निकल जाए, नंबर 1। तीसरा ऐसा है कि जिसको लगता है कि मेरा स्कूल सबके लिए प्रेरणादायी हो जाए। अब तीनों क्या क्या करेंगे? पहले वाला क्या करेगा? किसी भी तरह से उठा पटक करेगा और किसी भी तरह से नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं सब तरह से वो अपना प्रमोशन पाने के लिए वो स्कूल पे ध्यान देगा, एकेडमिक्स पे ध्यान देगा, टीचर के सुख दुख पे ध्यान देगा? नहीं, उसका फोकस कुछ और है। दूसरा प्रिंसिपल क्या करेगा? यदि उसका स्कूल नंबर 1 आना है तो वो टीचर्स पे भी ध्यान देगा, एकेडमिक्स पे भी ध्यान देगा, लेकिन किसी दूसरे स्कूल का भी संभावना लग गया कि वो भी बेहतर है तो उसके 2 टीचर ट्रांसफर करा देगा अच्छे वाले, ताकि वो स्कूल आगे ना बढ़े। और दूसरे स्कूलों के साथ ये द्वेष रखेगा, अपनापन नहीं रखेगा। अब यदि मैं कहता हूं कि मेरा विद्यालय सबके लिए प्रेरणादायी हो जाए, पूरे अस्तित्व में देखेंगे तो हर इकाई दूसरी इकाई के लिए प्रेरणादायी ही है। हम फूल को देख के प्रेरणा पा सकते हैं, पत्थर को देख के पा सकते हैं, नदी को देख के पा सकते हैं, पशु को देख के पा सकते हैं, अपने बेटे को देख के पा सकते हैं, अपने घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को भी देख के प्रेरणा पा सकते हैं। तो प्रेरणादायी हो जाना, तो मेरी फैक्ट्री सबके लिए प्रेरणादायी हो जाए, मेरा घर सबके लिए प्रेरणादायी हो जाए, मेरा जीवन सबके लिए प्रेरणादायी हो जाए, इसमें किसी को दिक्कत है? बाकी सब भी मेरे लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं, मैं भी सबके लिए प्रेरणादायी हो सकता हूं। तो ये नंबर 1 बनना अपने आप में मानसिक बीमारी है। स्कूल कॉलेजेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड घोषित करना ये अपने आप में एक मानसिक प्रॉब्लम है। ये बच्चों के अंदर मानसिकता में गहरे मानसिक विकारों को जन्म देता है ना? तो यहां से ये कोएग्जिस्टेंस के विरोध में है। सबके लिए सब सबके लिए प्रेरणादायी हो जाएं, ये कोएग्जिस्टेंस के अर्थ में है। यहां हम कोएग्जिस्ट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई एक नंबर 1 होगा, ये हम कोएग्जिस्टेंस के विपरीत बात कर रहे हैं। जब भी हम कोएग्जिस्टेंस के विपरीत बात करेंगे, हम जिंदगी के विपरीत बात कर रहे हैं। यहां समझ लीजिए हम कुछ ना कुछ नुकसान अपना ही करेंगे और समाज का करेंगे। तो क्या बेहतर है? हमारा बिजनेस सबके लिए प्रेरणादायी हो जाए, किस नंबर 1 हो जाए? नंबर 1 करना है तो फिर मर्जर और यूं और त्यों और सबको निपटाओ और लो रेट पे सामान बेचो, 2-5 साल नुकसान की इकोनॉमी चलाओ, उसके बाद सबको निपटा दो, सारे प्लेयर खत्म। ऐसी है मानसिकता। तो कितना भी करोड़ का, कितना भी आप हजारों करोड़ का बिजनेस चलाते हैं, मानसिकता कैसी है? मानसिकता बीमार है। ये धरती, अब तो आज तो समझ में आ गया, कुछ भी खरीद नहीं सकते। ये धरती हमारे लिए एकमात्र घरौंदा है जिसमें हम इतनी खुशहाली मना सकते हैं। इसका मौसम, इसकी जलवायु, इतने प्रकार के भोजन, इतने प्रकार के औषधि, इतने प्रकार की तमाम चीजें। और यदि ये घोंसले को हम नष्ट करने में लगे हैं तो जितनी भी मोनोपोली की बात हम करेंगे, जितनी भी किसी तरह की बात करेंगे, अल्टीमेटली नुकसान किसको पहुंचेगा? अल्टीमेटली धरती को नुकसान पहुंचेगा। कुछ परिवार उजड़ते हैं, कुछ कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं और फाइनली आम जनता ही परेशान होती है। तो दम है किसी में, लगता है किसी को अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व है, भैया पूरे संसार को। मैं तो कहता हूँ एलन मस्क बहुत लोग करते रहते हैं, तो एलन मस्क को मेरी तरफ से एक ईमेल डाल दो, भैया तुम्हारे पास कोई बुद्धि है तो धरती को रहने के लायक कैसे बनाएं, इस पे आइडियाज दे दो, है ना? इसको नहीं रहने के लायक छोड़ेंगे और चांद पे जाके बसेंगे, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। कुल मिला के सबको धंधा ही करना है, बिजनेस ही करना है। अक्ल इतनी ही है। दम है तो अपने परिवारों को बसा के देखें। मैंने पहले भी कहा कि इस देश में 10 लाख फॉलोअर इकट्ठे करना, 10 करोड़ फॉलोअर इकट्ठे करना बहुत आसान काम है। एक छत के नीचे अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जीना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है।
दम है तो इस काम को करके दिखाओ। ये करने लायक काम है। इससे ज्यादा दम है तो अपने शहर को ट्रांसफॉर्म करके देखें, अपने गांव को करके देखें, अपने मोहल्ले को करके देखें। हमारे होने से चारों तरफ खुशबू फैल जाए तो हमारे होने का मतलब है। हमारे होने से चारों तरफ दुख दर्द और गंदगी फैल जाए, ये हमारे व्यक्तित्व की कुरूपता है। कितना बढ़िया। क्रिएशन में, सृजन में दम लगता है, क्रिएशन में, सृजन में मन लगता है। दूसरा भी देख के उत्साहित होता है, दूसरा भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। जब आप दूसरे को निपटाने जाते हो तो कोई आपको भी निपटाएगा। फाइनली हमारी सारी ऊर्जा नेगेटिविटी में लग रही। इस प्लेनेट को कितना सुंदर बना सकें, अपने घर को कितना सुंदर बनाएं, अपनी फैक्ट्री को कितना सुंदर बनाएं, अपने गांव को कितना सुंदर, अपने अपने ऑफिस को, जहां हम हैं उसकी खुशबू वहां फैल जाए और वहां वाकई में जीना हो जाए और दूसरों के लिए वो जीना प्रेरणादायी हो जाए। इसमें क्या दिक्कत है बताओ? इसमें कहाँ सम्मान की कमी है? इसमें कहाँ खुशी की कमी है? इसमें कहाँ सफलता की कमी है? सब कुछ हो सकता है। पहले क्या बोलते थे? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब क्या बोल रहे हैं? सब कुछ एक साथ पाया जा सकता है, कुछ भी खोने की आवश्यकता। हम कुछ खोना चाहते ही नहीं, हम तो सब कुछ पाना चाहते हैं। तो मैं भी खुश हो जाऊं, मेरी फैमिली भी खुश हो जाए, ना किसी भौतिक वस्तु की कमी हो, ना किसी भाव की कमी हो, ना मेरे घर में हो, ना पूरे गांव में हो। और क्या चाहिए? मुंबई में करो कुछ, आओ, वाकई में जरूरत है। कुछ बड़े शहरों में कुछ अच्छा होने लगेगा तो लोगों को प्रेरणा ज्यादा मिलेगी। बड़े शहरों में बहुत प्रतिभाशाली लोग पहुंचे हैं पूरे देश से चुन चुन के। लगभग भारत का पूरा प्रतिभाशाली वर्ग मेट्रोज में चला जाता है और पूरे देश का निकल के किसी लंदन अमेरिका चला जाता है। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।